میں اپنے کھیل میں مگن تھا کہ میرا دوست میرے گھر کے باہر آ کے مجھے پکارنے لگا۔ میرا آج کہیں بھی جانے کا بالکل دل نہیں تھا۔ ایک تو یہ جون کی حبس زدہ گرمی جان نکال دینے والی تھی، اور دوسرا یہ کہ میرے دوست ہمیشہ کرکٹ کھیلنے پہ اصرار کرتے۔ مجھے کرکٹ میں کبھی بھی کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، مجھے ہمیشہ سے فٹ بال کھیلنا پسند تھا، لیکن میرے دوستوں کو فٹ بال کے نام سے ہی الجھن ہوتی تھی۔ میں جب بھی انہیں فٹ بال کھیلنے کا کہتا تو وہ ہمیشہ میری بات کو ٹال دیتے اور اپنی ضد پہ قائم رہتے۔ بس اسی وجہ سے میں نے ان کے ساتھ کھیلنا بہت زیادہ کم کر دیا تھا، اور اب میں زیادہ تر وقت گھر میں بیٹھ کے ویڈیو گیمز میں ہی گزارتا تھا۔ میں بھی بیٹھک میں گیم کھیل ہی رہا تھا کہ میری بھابھی میرے پاس آئیں اور کہنے لگیں، سعد جاؤ جا کے باہر سے کرانے کی دکان سے مجھے کچھ سامان لا دو۔ انہوں نے مجھے سامان کی پرچی میرے ہاتھ میں دی اور کچھ پیسے میرے ہاتھ میں تھما دیے۔ میں نے ہاتھ میں پکڑی اس پرچی کو دیکھا اور پھر باہر سے آنے والی آواز پہ دوبارہ غور کرنے لگا۔ میرا دوست ابھی بھی گیٹ پہ کھڑا مجھے پکار رہا تھا۔ ہار کے مجھے اٹھنا پڑا اور میں کسی بوجھ کی طرح گھر سے باہر آیا۔ میرا دوست میرے قریب آیا اور کہنے لگا، میں کب سے تجھے آوازیں لگا رہا ہوں، کیا تجھے سنائی نہیں دیتا؟ میرے چہرے پہ بیزاری پھیل گئی۔ میں نے بیزاری سے جواب دیا کہ ارے یار کیا کروں، سارا دن بھابھی مجھے گھر کے کاموں میں الجھائے رکھتی ہیں، بس اسی میں مصروف رہتا ہوں۔ میرا دوست ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ تیری بھابھی کو تو چاہیے کہ وہ تجھ سے کوئی اچھا کام نہ کروائے، کیونکہ تو اس کا دیور ہے، اسے گھر کے کام تجھ سے نہیں کروانے چاہیے۔ اسے مذاق اڑاتے ہوئے یہ بات کہی اور خدا جانے وہ مزید کیا کیا کہہ رہا تھا، لیکن میں نے اس کی باتوں کو یکسر نظر انداز کر دیا اور کریانے کی دکان تک چلا گیا۔ میں نے اسے جاتے ہوئے کہہ دیا کہ میری بھابھی نے مجھے سامان لینے کے لیے بھیجا ہے اور مجھے جلدی گھر واپس آنا ہے، اس لیے مجھے اب مزید وقت ضائع نہیں کرنا۔ میں یہ کہہ کے دکان کے اندر چلا گیا، جبکہ میرا دوست بھی پیچھے سے واپس اپنے گھر کی طرف مڑ گیا۔ اس کو اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی تھی کہ میں اب اس کے ساتھ نہیں کھیلنا چاہتا۔ میں تھوڑی دیر بعد کریانے کی دکان سے سامان لے کے باہر آیا تو وہ جا چکا تھا۔ میں اپنے کندھے اچکایا اور واپس اپنے گھر کی طرف آ گیا۔ گھر آ کے میں نے سارا سامان اپنی بھابھی کے حوالے کیا اور خود واپس گیم کھیلنے بیٹھ گیا۔ میری بھابھی ہمیشہ کہا کرتی تھی، سعد تم ہر وقت گیم میں ہی لگے رہتے ہو، تھوڑا باہر نکل کے دوستوں کے ساتھ بھی وقت گزارا کرو، لیکن میں ان کی ہر بات کو ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال دیتا۔ مجھے لگتا تھا کہ اتنی گرمی میں باہر جا کے کون کھیلے گا، اتنی گرمی میں تو گھر میں ہی رہنا سب سے بہتر ہے۔ بھابھی ہمیشہ مجھے پیار سے ڈانٹتی اور سمجھاتی تھیں، لیکن میں ان کی کسی بھی بات پہ ذرا بھی غور نہیں کیا کرتا تھا۔ ماما اور پاپا کے گزر جانے کے بعد سے میں اپنے بھائی کے گھر میں ہی رہ رہا تھا۔ میرا بھائی مجھے ایک باپ کی طرح پالا کرتا تھا، اور بھابھی نے بھی مجھے کبھی ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی۔ میں سارا دن اسی طرح کے خیالات میں گم رہتا اور وقت گزارتا رہتا تھا۔ رات کا وقت تھا، میں دوبارہ بیٹھا گیم کھیل رہا تھا کہ میری بھابھی میرے کمرے میں آئیں اور کہنے لگیں، تم ابھی تک جاگ رہے ہو، تمہیں تو سو جانا چاہیے کیونکہ صبح تمہیں اسکول بھی جانا ہے۔ میں نے بیزاری سے کہا، کیا بھابھی آپ ہر وقت میرے پیچھے پڑی رہتی ہیں؟ آپ جائیں، جا کے خود سو جائیں اور مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیں۔ میرے اس طرح بدتمیزی سے بات کرنے پہ بھی میری بھابھی ہمیشہ خاموش رہتی اور مجھے اکیلے چھوڑ کے کمرے سے باہر چلی جاتی۔ مجھے بعد میں اپنی اس بدتمیزی پہ شرمندگی تو ہوتی تھی، لیکن اس وقت غصے کے عالم میں مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آتا تھا۔ میں نے جھنجھلا کے ٹی وی بند کیا اور بیڈ پہ جا کے لیٹ گیا۔ اب گیم میں بھی مجھے کوئی مزہ نہیں آتا تھا، مجھے کچھ اور نیا چاہیے تھا جو مجھے سکون دے سکے۔ صبح اٹھا، میں اسکول گیا۔ پورا دن اسکول میں تھکا تھکا سا رہا، کیونکہ رات دیر تک جاگنے کی وجہ سے میری نیند بالکل بھی پوری نہیں ہوئی۔ آج اسکول میں آخری دن تھا اور آج کے بعد سے 2 مہینے کی اسکول کی چھٹیاں شروع ہونے والی تھیں۔ سب لڑکے خوشی سے ہلہ گلا کرتے ہوئے اسکول سے باہر نکلے تھے اور اپنے گھروں کو جا رہے تھے۔ میں بھی گھر آیا اور بنا ڈریس بدلے سیدھا بیڈ پہ جا کے گر گیا اور گہری نیند میں چلا گیا۔ جب شام میں میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ میرے بھائی میرے سامنے کھڑے تھے۔ وہ کافی غصے سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ وہ بولے، تم بہت لاپرواہ ہو گئے ہو، اسکول سے آنے کے بعد تمہیں اپنا یونیفارم تبدیل کرنا چاہیے، نہ کہ تمہیں یوں بیڈ پہ بکھر جانا چاہیے۔ کیا تمہاری بھابھی نے تمہیں کچھ نہیں سکھایا؟ تم گھر میں کیا کرتے ہو؟ بھائی کے الفاظ سن کے میں نے خاموشی سے اپنا سر جھکا لیا۔ بھائی کو کیا پتا تھا کہ بھابھی مجھے ہر وقت کتنے پیار اور محبت سے سمجھاتی اور ڈانٹتی رہتی ہیں۔ وہ مجھے زندگی کے ہر ایک پہلو کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن میں ہی ہوں جو ان کی کسی بھی بات پہ غور نہیں کرتا۔ اور آج بھائی کے اتنے سخت رویہ اپنانے کے باوجود بھابھی نے کبھی میرے بھائی سے میری کوئی شکایت نہیں کی۔ وہ ہمیشہ خاموش رہ کے میرے لیے دعائیں کرتی تھی اور مجھے اچھے راستے پہ چلنے کی کوشش میں لگی رہتی تھی۔ عائزہ بھابھی نے حماد بھائی کو ٹوکا۔ حماد بھائی نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموشی سے میرے کمرے سے باہر نکل گئے۔ عائزہ بھابھی میرے پاس آ کے بیٹھ گئیں اور میرے سر پہ پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے بولیں کہ ساتھ تم نے کتنی دفعہ کہا ہے کہ تمہارے بھائی کو یہ سب بالکل پسند نہیں،
क्या तुम मेरी कोई बात नहीं मानोगे? मैंने हमेशा की तरह उनकी इस बात को भी नज़रअंदाज कर दिया और फ्रेश होकर अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए घर से बाहर निकल गया। मैं जब मैदान में पहुंचा तो मेरे तमाम दोस्त एक ग्राउंड में इकट्ठे होकर बैठे थे। उन सब के हाथों में मोबाइल थे, न जाने वो उसमें क्या देख रहे थे कि किसी को मेरे आने का एहसास तक न हुआ। मैं उनके करीब गया तो उन्होंने फ़ौरन अपने अपने मोबाइल छुपा लिए। मैंने उन्हें हैरत से देखा और पूछा, क्या छुपा रहे हो मुझसे? मुझे भी तो दिखाओ। वो कहने लगा, ये तुम्हारे मतलब की चीज़ें नहीं। वैसे आज तुम यहाँ कैसे आ गए? मुझे उनका ऐसा कहना बहुत अजीब लगा। मैं मुस्कुराया और कहने लगा, आज हम्माद भाई घर पे ही थे। उन्होंने मुझसे कहा, जाओ अपने दोस्तों के साथ बाहर जाके खेल लो, इसलिए मैं आज यहाँ आ गया। मैंने पूछा, क्या हम फुटबॉल खेलेंगे? मगर वो खामोश हो गए। फिर उनमें से एक ने कहा, अच्छा ठीक है, लेकिन सच बताएं तो आज हमारा खेलने का कोई मूड नहीं। मैंने हैरत से उनकी तरफ देखा। ये वही दोस्त थे जो मुझे हमेशा साथ खिलाने के लिए मेरे घर के बाहर आके खड़े हो जाते थे। और आज वो खुद कह रहे थे कि उनका खेलने का कोई मूड नहीं है। मैं वहाँ से उदास दिल के साथ वापस निकला और एक कोने में जाके बैठ गया, जहाँ से सड़क पे होने वाली चहलकदमी को देखा जा सकता था। गर्मियों की ये छुट्टियाँ बहुत सुस्त रवि से गुजर रही थीं। हम लोग न कहीं बाहर जा रहे थे और ना ही किसी रिश्तेदार के घर जाना हो पा रहा था। मेरा बेहतरीन दोस्त फ़िरोज़ भी उन दिनों अपनी नानी के घर गया हुआ था, जिसकी वजह से मैं काफ़ी तन्हा हो गया था। चंद दिन बाद जब वो वापस आया तो मेरे चेहरे पे रौनक दोबारा लौट आई। एक दिन मेरे घर में आयज़ा भाभी को पुकारा, लेकिन वो अपने कमरे में नहीं थीं। मैं उनके कमरे की तरफ बढ़ा और दरवाज़ा खोल के अंदर झाँका तो देखा कि हम्माद भाई आयज़ा भाभी को पास बिठाए कोई बात कर रहे हैं। मैंने जैसे ही पूरा दरवाज़ा खोला तो वो एकदम चौंक गए। हम्माद भाई गुस्से से चमक उठे और बोले, ये क्या बदतमीज़ी है? तुम्हें अंदर आने से पहले दरवाज़ा नॉक करना चाहिए था। मैं शर्मिंदगी से वहाँ से मुड़ गया और कहा, अच्छा सॉरी भाई, अब से ऐसा नहीं करूँगा। मैं तो बस ये बताने आया था कि मैं फ़िरोज़ से मिलने जा रहा हूँ। मैं बिना भाई की बात सुने वहाँ से निकल गया। अब मुझे ये बात फ़िरोज़ को बतानी थी, क्योंकि मैं हर छोटी बड़ी बात उससे शेयर किया करता था और वो भी मुझसे अपनी हर बात बाँटता था। मैं उसके घर गया तो वो पहले ही अपने मोबाइल को लिए घर के बाहर खड़ा था। मैं खुशी से उससे मिला और कहा, यार कितने दिनों बाद मिला है, मैंने तुझे बहुत मिस किया, चल आज फुटबॉल खेलते हैं। वो कहने लगा, नहीं साद, आज फुटबॉल नहीं, बल्कि मेरे पास तुझे दिखाने के लिए एक बहुत ख़ास चीज़ है। मैंने हैरत से पूछा, ऐसी क्या चीज़ है? कहने लगा, चलो आओ मेरे घर के अंदर चलो और मेरे कमरे में बैठ के बात करते हैं। मुझे बहुत हैरत हुई, क्योंकि वो कभी इस तरीके से मुझे अपने कमरे में नहीं बुलाता था। हम कितने भी पक्के दोस्त क्यों ना हो, लेकिन उसके घर वालों की सख्ती के बायस वो मुझे कभी अपने घर के अंदर नहीं लेके जाता था। मुझे तजस्सुस हुआ कि ऐसा क्या है जो वो मुझे घर के अंदर ले जा रहा है। मैं खामोशी से उसके साथ उसके कमरे तक गया। वहाँ पहुँच के मैंने पूछा, यार जल्दी बता, क्या बताना है? वो दिलचस्पी से मेरी तरफ देखने लगा। मैंने जो आज हम्माद भाई और आयज़ा भाभी के कमरे में देखा, वो सारा हाल उसे सुना दिया। मेरी बात सुन के वो हंसने लगा और कहने लगा, अरे मैंने भी तुझे यही दिखाना है, मैं तुझे कुछ ख़ास दिखाता हूँ। उसे अपने मोबाइल में एक वीडियो चलाई और मेरे सामने कर दी। मुझे ये डर था कि कोई देख ना ले। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है। मेरा चेहरा पसीने से तर हो गया और हलक बार बार खुश्क होने लगा। मैंने हैरत से पूछा कि ये सब क्या है? वो हंस के बोला, यार ऐसा ही है ये सब। मैंने उसे हैरत से देखा और कहा, नहीं, ये सब बहुत अजीब है और ऐसा नहीं हो सकता। वो हंसने लगा और कहने लगा कि ये सब सबके सामने थोड़ी होता है, ये तो अंदर की बातें हैं। क्या तुमने कभी क्या तुमने कभी उनके कमरे में झांका है? आज सुबह जो तुमने देखा वो उसी की एक झलक थी। मैंने कहा, नहीं, उनके कपड़े तो ठीक थे। वो कहने लगा, वो जो कर रहे थे उसके बाद यही होना था। मुझे एक अजीब सा तजस्सुस हो गया। क्या वाकई हम्माद भाई और आयशा भाभी ऐसा करते हैं? मैंने पूरा दिन फिरोज के कमरे में गुजारा और मुझे एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। उस बेचैनी को दूर करने के लिए मैंने सोचा कि क्यों ना आज रात मैं खुद अपने भाई के कमरे में छुप के देखूंगी वो आखिर करते क्या हैं। मैं सच जानना चाहता था कि फ़िरोज़ की बात सच थी या नहीं। मैं ऐसी कश्मकश में घर पहुंचा। घर पहुंचते ही आयज़ा भाभी ने खाना मेरे सामने ला के रखा। उनका चेहरा हमेशा की तरह खिला खिला सा था। मैंने खाना खाया, लेकिन मेरा जहन उसी सोच में मगन था कि आज रात मुझे क्या करना है। रात के खाने के बाद आयज़ा भाभी किचन में मसरूफ़ थी और मैं मौका पाकर हम्माद भाई के कमरे में दाखिल हो गया। मेरा मकसद वहाँ कोई ऐसी जगह ढूंढना था जहाँ मैं छुप के बैठ सकूं और ये जान सकूं कि आखिर बंद दरवाजे के पीछे वो दोनों क्या करते हैं। मैंने कमरे में अपनी नज़रें घुमाई तो वहाँ बहुत सा पुराना सामान बिखरा पड़ा था। मैं ये सोच ही रहा था कि किस तरह यहाँ खुद को छुपाऊं कि अचानक हम्माद भाई कमरे में आ गए।
مجھے حیرت سے دیکھنے لگے کہ میں آخر یہاں کیا کر رہا ہوں اور کیا ڈھونڈ رہا ہوں۔ میں نے فوراً بات سنبھالتے ہوئے کہا کہ بھائی یاد ہے آپ نے ایک دفعہ شوز لیے تھے، وہ مجھے بہت پسند آئے تھے، کیا مجھے وہ مل سکتے ہیں؟ حماد بھائی نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر کچھ سوچتے ہوئے بیڈ کی طرف اشارہ کیا کہ وہ شوز تو بیڈ کے نیچے پڑے ہیں، لیکن وہاں بہت سارا سامان جمع ہو گیا ہے، تم کل صبح اپنی بھابھی کے ساتھ مل کے پیچھے سے سارا سامان نکلوا دینا، گھر کی تھوڑی سی صفائی بھی ہو جائے گی اور تمہیں وہ شوز بھی مل جائیں گے۔ اس کے علاوہ بھی میرا کچھ پرانا سامان ہے جو میرے کام کا نہیں، تم اسے نکال کے اپنے پاس رکھ لینا اور استعمال کر لینا۔ میں بھائی کی بات سن کے خوش ہو گیا اور خوشی سے وہاں سے نکل کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد جیسے ہی عائزہ بھابھی کمرے میں داخل ہوئی تو میں فوراً ان کے پیچھے پیچھے گیا اور کھڑکی کے پاس جا کے چپکے سے اندر کی طرف دیکھنے لگا۔ میرے کانوں میں بھابھی کی آواز پڑی، وہ پوچھ رہی تھی سعد آج اتنا خوش ہو کے کیوں گیا تھا؟ حماد بھائی کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ تھی، وہ مسکراہٹ جو صرف اور صرف عائزہ بھابھی کے سامنے ہی آیا کرتی تھی، ورنہ تو وہ گھر میں سب کے ساتھ بہت سنجیدہ رہتے تھے اور مجھے بھی اکثر سختی سے ڈانٹ دیا کرتے تھے۔ بھائی نے جواب دیا کہ ارے کچھ نہیں، بس اپنے پرانے جوتوں کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ انہوں نے یہ کہہ کے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا جسے بھابھی نے پیار سے تھام لیا۔ میں غور سے انہیں دیکھنے لگا کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ میں ابھی بہت تجسس کے عالم میں کھڑا انہیں کو دیکھ رہا تھا کہ اچانک بھائی نے کھڑکی کی طرف دیکھا۔ جیسے ہی میری نظریں ان سے ملی تو میں فوراً سر جھکا کے وہاں سے نکل گیا۔ مجھے لگا شاید انہوں نے مجھے دیکھ لیا ہے اور یہ خیال آتے ہی میرے پورے جسم میں لرزہ طاری ہو گیا۔ میرے ماتھے پہ پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے اور میں اپنے کمرے میں جا کر بے چینی سے ٹہلنے لگا۔ اب مجھے ایک نیا اور شدید ڈر لاحق ہو گیا تھا کہ کہیں بھائی نے مجھے دیکھ تو نہیں لیا۔ مجھے یہ بھی جاننا تھا کہ کہیں وہ واقعی وہی کچھ کرتے ہیں جو فیروز نے مجھے بتایا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ خوف بھی تھا کہ اگر بھائی نے مجھے پکڑ لیا تو وہ مجھ پہ ہاتھ اٹھانے میں دیر نہیں کریں گے، اور اس بار تو عائزہ بھابھی بھی مجھے نہیں بچا سکیں گی، کیونکہ انہوں نے پہلے بھی کبھی کسی معاملے میں میرا ساتھ نہیں دیا تھا۔ میرے اندر کا تجسس مجھے سکون سے بیٹھنے نہیں دے رہا تھا۔ میں بار بار ان کے کمرے میں گھسنے اور وہاں چھپنے کے منصوبے بنا رہا تھا۔ میں نے خود سے کہا جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا، لیکن میں یہ سچ جان کے رہوں گا کہ آخر وہ بند دروازوں کے پیچھے کیا کرتے ہیں۔ یہ سوچتے سوچتے میں سونے کے لیے لیٹ گیا، لیکن نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میں اب کل صبح کا بے صبری سے انتظار کر رہا تھا کہ کب سورج طلوع ہو، کب میں عائزہ بھابھی کے ساتھ مل کے بیڈ کے نیچے سے وہ سارا سامان نکلواؤں اور پھر رات کے وقت اپنے طریقے سے ان کے کمرے میں داخل ہو سکوں۔ میری پوری رات کروٹیں بدلتے گزری۔ میرے ذہن میں فیروز کی دکھائی ہوئی وہ ویڈیو بار بار گھوم رہی تھی اور میں تصور کر رہا تھا کہ کیا واقعی میرے بھائی اور بھابھی بھی ویسے ہی ہوں گے۔ یہ سوچ میرے اندر ایک عجیب سی بے چینی پیدا کر رہی تھی جسے میں بیان کرنے سے قاصر تھا۔ میں نے اپنے دل کو سمجھایا کہ یہ سب غلط ہے، لیکن تجسس میرے ضمیر پہ بھاری تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے مجھے اس حقیقت تک پہنچنا ہے۔ میں نے کمرے کی کھڑکی سے باہر دیکھا جہاں اندھیرا چھایا ہوا تھا اور دور کہیں کتے کے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور دعا کی کہ کل کا دن جلد گزر جائے تاکہ میں اس راز سے پردہ اٹھا سکوں جو میری سوچوں کو مقید کر چکا تھا۔ میں جانتا تھا کہ یہ راستہ بہت پرخطر ہے، لیکن میری عمر کا یہ تقاضا اور یہ انجانہ تجسس مجھے کسی صورت باز نہیں آنے دے رہا تھا۔ میں نے اپنی چادر سر پہ اوڑھی اور ایک گہری سانس لے کے سونے کی کوشش کرنے لگا تاکہ صبح کے کاموں کے لیے خود کو تیار رکھ سکوں۔ مجھے یہ احساس بھی تھا کہ میں اپنے بھائی کی دی ہوئی محبت اور اعتماد کا غلط فائدہ اٹھا رہا ہوں، مگر میری بے وقوفی اور تجسس اس وقت میرے جذبات پہ حاوی تھے۔ میں نے آنکھیں بند کی اور خوابوں میں وہی مناظر دیکھنے لگا جو مجھے بے چین کر رہے تھے۔ اگلے دن کی صبح سورج کی کرنیں میرے چہرے پہ پڑھیں تو میری آنکھ کھلی۔ رات بھر کی بے چینی کے باوجود میں اس انتظار میں تھا کہ کب دن چڑھے اور میں اپنے منصوبے کی تکمیل کی طرف قدم اٹھاؤں۔ میں اٹھا، معمول کے مطابق تیار ہوا، مگر دل کی دھڑکنیں معمول سے کہیں زیادہ تیز تھیں۔ ناشتے کی میز پہ عائزہ بھابھی معمول کے مطابق ہنستی مسکراتی ناشتہ دے رہی تھی، جبکہ حماد بھائی اخبار پڑھنے میں مگن تھے۔ مجھے بار بار ان کی طرف دیکھتے ہوئے ایک عجیب سی جھجک محسوس ہو رہی تھی۔ ناشتے کے بعد حماد بھائی اپنے کام پہ نکل گئے تو میں نے سکھ کا سانس لیا۔ آج کا دن میرے لیے بہت اہم تھا۔ عائزہ بھابھی نے مجھے آواز دی کہ ساتھ جلدی آؤ، آج بیڈ کے نیچے سے سارا سامان نکالنا ہے، بہت وقت لگے گا، تم میری مدد کروا دو۔ میں فوراً اٹھا اور ان کے کمرے میں چلا گیا، وہ کمرہ جہاں داخل ہونے سے پہلے مجھے خوف محسوس ہوتا تھا۔ ہم نے بیڈ کے نیچے سے پرانا سامان نکالنا شروع کیا۔ وہاں دھول اور پرانی یادوں کا ڈھیر تھا۔ میں بیڈ کے نیچے جھک کے سامان کھینچ رہا تھا اور میری نظریں بار بار بیڈ کے کناروں اور وہاں بچھے ہوئے قالین کو دیکھ رہی تھیں۔ عائزہ بھابھی خوشگوار موڈ میں تھی، وہ کبھی کبھی کوئی پرانی یاد تازہ کرتی اور ہنس پڑتی،
लेकिन मेरा सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ इस बात पे था कि रात को यहाँ किस तरह छुपा जा सकता है। काम के दौरान कभी कभी उनके हाथ मेरे हाथों से टकराते तो एक झटका सा महसूस होता। मैं मुसलसल सोच रहा था, क्या ये वही जगह है जहाँ रात को वो दोनों वो सब करते हैं। ये सोच कर मेरी सांसें उखड़ रही थी। काम खत्म करते हुए दोपहर हो चुकी थी। तभी बाहर से फिरोज की आवाज़ आई। वो मुझे क्रिकेट खेलने के लिए बुला रहा था। मैं बाहर गया तो फिरोज का चेहरा खिला हुआ था। वो मुझे मैदान की तरफ जाने का कह रहा था, मगर मेरा तो पूरा वजूद अब किसी और ही दुनिया में कैद था। मैंने बेजारी से उसे मना कर दिया कि नहीं फिरोज, आज मेरा बिल्कुल दिल नहीं, तुम जाओ, मुझे घर के कामों में बहुत थकन हो गई है। फिरोज ने कुछ इसरार किया, लेकिन जब उसने मेरे चेहरे पे एक अजीब सी संजीदगी और बेजारी देखी तो वो खुद ही खामोश हो गया और वापस चला गया। मैं वापस अपने कमरे में आ गया। पंखे की तेज हवा भी मुझे ठंडक नहीं पहुंचा रही थी। मेरे जहन में मुसलसल वही सवाल गर्दिश कर रहे थे। क्या ये तजस्सुस मुझे कहीं गलत रास्ते पे तो नहीं ले जा रहा? क्या ये अखलाकी है कि मैं अपने भाई के एतमाद का इस तरह फ़ायदा उठाऊं? लेकिन ये सवालात वक्ती थे। तजस्सुस की आग मेरे अंदर भड़क रही थी। शाम ढलने लगी थी और सूरज अपनी सुर्खी बिखेरता हुआ डूब रहा था। घर में खामोशी छाई हुई थी, बस किचन से बर्तनों की हल्की सी खनक सुनाई दे रही थी। मैंने सोचा, आज का दिन कितनी सुस्त रवि से गुजरा है, जैसे वक्त मेरे साथ कोई खेल खेल रहा हो। मैंने दोबारा अपने कमरे में बैठ के वही गेम खेलने की कोशिश की जो मुझे कल तक बहुत पसंद थी, मगर आज उसमें कोई दिलचस्पी बाकी नहीं थी। मेरी उंगलियां कंट्रोलर पे थीं, लेकिन मेरा जहन सिर्फ उनके कमरे के दरवाजे पे था, जो अब मेरे लिए किसी राज का संदूक बन चुका था। रात का खाना खाकर हम अपने अपने कमरों में जा चुके थे। घर में खामोशी का राज था। सिर्फ घड़ी की टिक टिक मुझे सुनाई दे रही थी। मैंने सोचा, अब वक्त आ गया है। मैंने अपने कमरे की लाइट बंद की और दबे पांव हॉल से गुजरता हुआ हम्माद भाई और आयजा भाभी के कमरे की तरफ बढ़ा। मेरे पैरों तले जैसे ज़मीन कांप रही थी। मैंने कमरे के दरवाजे के पास जाके कान लगाए, अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। मेरी धड़कनें अब मेरे कानों में गूंज रही थीं। मैंने आहिस्ता से दरवाजे की कुंडी को छुआ तो वो बंद थी। मैं वहाँ से हट के खिड़की के पास पहुँचा। खिड़की का एक हिस्सा थोड़ा सा खुला था, जहाँ से कमरे की हल्की सी रोशनी बाहर आ रही थी। मैंने पर्दे को ज़रा सा हटाया और अंदर झांका। कमरे में मध्यम रोशनी थी। आयजा भाभी अपने बालों में कंघी कर रही थीं और हम्माद भाई आईने के सामने खड़े अपने कपड़े दुरुस्त कर रहे थे। वो मंजर देख के मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई। क्या वो अब कुछ ऐसा करने वाले थे जिसकी मुझे तलाश थी? मैंने अपनी सांसें थाम ली ताकि मेरी आहट भी उन्हें सुनाई न दे। मैं खिड़की से ज़रा सा और करीब हुआ, मगर उसी लम्हे हम्माद भाई की नज़र खिड़की की तरफ उठी। मैं फ़ौरन पीछे हट गया और अपना सांस रोके वहीं दीवार के साथ लग कर खड़ा हो गया। मेरे दिल में ख्याल आया कि अगर उन्होंने मुझे देख लिया तो क्या होगा। मेरे जिस्म पे ठंडे पसीने के कतरे आ गए। मैं वहाँ से खामोशी से हटकर वापस अपने कमरे की तरफ भागा और अपने बेड पे गिर गया। मैंने कंबल ओढ़ लिया, लेकिन मेरी आंखें खुली थीं और मेरा दिल शिद्दत से धड़क रहा था। मैं सोच रहा था कि मेरी ये हरकतें किसी को शक में तो नहीं डाल रही। वो वीडियो का मंजर याद आ जाता और मेरा सारा ज़मीर एक तरफ होके रह जाता। मैं इसी कश्मकश में मुब्तला था कि आखिर मुझे क्या करना है। क्या मैं वाकई ये सब कुछ अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ, या ये तजस्सुस मुझे बर्बाद कर देगा? रात के 3 बज चुके थे, बाहर सन्नाटा था और मैं मुसलसल अपने बेड पर करवटें बदल रहा था। मेरे जहन में एक अजीब सा तजस्सुस था, एक ऐसी बेचैनी जो मुझे कहीं भी सुकून नहीं लेने दे रही थी। मुझे महसूस हो रहा था जैसे मैं किसी ऐसे रास्ते पे चल पड़ा हूँ जहाँ से वापसी मुमकिन नहीं, और ये रास्ता सिर्फ अंधेरों की तरफ जाता है। मैंने आखिरी बार सोचा, कल सुबह जब मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। मैंने आंखें बंद की, मगर आंखों के सामने सिर्फ हम्माद भाई और आयजा भाभी का वो कमरा था। वो दीवार, वो खिड़की और वो राज जो शायद हमेशा के लिए बंद दरवाज़ों के पीछे ही रहने के लिए बने थे। मेरी ज़िंदगी का ये एक आम दिन नहीं था, ये मेरी ज़ात के अंदर होने वाली एक बड़ी कशमकश का दिन था। एक ऐसा तजस्सुस जो शायद कभी ख़त्म ना होता, अगर मैं अपनी सोचों को ना बदलता। मैं आखिरकार थक के सो गया, मगर मेरे ख्वाबों में भी वही तजस्सुस, वही बेचैनी शामिल थी। अगले दिन सुबह जब मेरी आँख खुली तो सूरज की रोशनी कमरे में पूरी तरह फैल चुकी थी। मैंने उठ के देखा तो घर में एक अजीब सा सुकून था। हम्माद भाई आज दफ्तर नहीं गए थे। वो छुट्टी पे थे और सारा दिन घर ही रहे। ये बात मेरे लिए किसी बड़ी परेशानी से कम नहीं थी, क्योंकि मैंने जो मंसूबा बनाया था उसके लिए उनका घर से बाहर जाना ज़रूरी था। सारा दिन मैंने बहुत एहतियात से गुजारा। मैं अपने कमरे में ही रहता और ज़्यादातर वक्त गेम्स में गुजारता, मगर मेरा ध्यान हर वक्त हम्माद भाई की हरकत पे था।
मैंने नोट किया कि हम्माद भाई आज बहुत ज़्यादा मोहतात थे। वो कभी कभी मेरी तरफ ऐसी गहरी नज़रों से देखते कि मुझे महसूस होता जैसे उन्हें मेरे अंदर की छुपी हुई बेचैनी और मेरे इरादों का इल्म हो चुका है। मैं उनकी नज़रों से बचने के लिए अपना सर झुका लेता और किसी न किसी काम में खुद को उलझा लेता। जैसे जैसे दिन ढला मेरे अंदर तजस्सुस बढ़ता गया। शाम को जब अंधेरा छा गया तो मैंने सोचा कि आज का मौका हाथ से नहीं जाने दूंगा। रात का खाना खाने के बाद वो अपने कमरों में चले गए। मैं अपने कमरे में बत्ती बुझा के लेट गया ताकि उन्हें यकीन हो जाए कि मैं सो चुका हूँ। आधे घंटे बाद जब घर में मुकम्मल खामोशी छा गई तो मैं आहिस्ता से उठा। मेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज़ थीं कि मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे कमरे की हर दीवार मेरी धड़कन की आवाज़ सुन रही हो। मैं दबे पाँव हॉल से गुजरता हुआ हम्माद भाई और आयज़ा भाभी के कमरे के पास पहुंचा। कमरे का दरवाज़ा नीम बा था, अंदर से हल्की सी रोशनी आ रही थी। मैंने बहुत एहतियात से अंदर झांका। वो दोनों बेड पे बैठे बातें कर रहे थे। मैं मौका पाकर कमरे के कोने से होता हुआ बेड के नीचे रेंग के घुस गया। बेड के नीचे बहुत गिर थी जिससे मेरी सांस फूलने लगी और मुझे बार बार छींक आने का एहसास हो रहा था, मगर मैंने खुद को जब्त कर रखा था। मैं वहाँ अंधेरे में दुबक के लेट गया और अपनी सांसें बहाल करने की कोशिश की। कुछ ही लम्हों बाद हम्माद भाई और आयज़ा भाभी बेड पे लेट गए। मैं अपनी जगह से हिले बगैर उनकी हर हरकत को महसूस कर रहा था। मेरी नज़रें ज़मीन पर जमी हुई थीं। अचानक मुझे महसूस हुआ कि हम्माद भाई की नज़रें नीचे की तरफ आईं। उस लम्हे मेरी रूह कांप उठी। उन्होंने मुझे देख लिया था। मैं जानता था कि वो मुझे देख चुके हैं, लेकिन हैरत की बात यह थी कि उन्होंने मुझे बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने मुझे देखा ही ना हो। वो पुरसकून अंदाज में अपनी बीवी आयज़ा की तरफ मुड़े और कहने लगे, आयज़ा, ज़रा किचन से जाके मेरे लिए पानी लेके आओ। मुझे सास से कुछ ज़रूरी बात करनी है। मैं उसे अभी बुला के ले आता हूँ। तुम तब तक पानी लाओ। भाभी ने एक लम्हे के लिए उनकी तरफ देखा, फिर बगैर कुछ कहे कमरे से बाहर निकल गईं। मैं अंदर ही अंदर काँप रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि भाई को कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ। जैसे ही भाभी के कदमों की चाप दूर होती गई और हम्माद भाई को यकीन हो गया कि वो किचन में चली गई हैं, तो एकदम सन्नाटा छा गया। हम्माद भाई ने बहुत धीमी मगर पुरसकून आवाज़ में मुझे मुखातिब करके कहा, साद, बाहर आओ। मैं जानता हूँ तुम नीचे ही हो। उनकी आवाज़ में गुस्सा नहीं बल्कि एक अजीब सी संजीदगी थी, जिसने मुझे मज़ीद खौफज़दा कर दिया। मैं डरते डरते अपने सर को झुकाए खौफ से कांपता हुआ बेड के नीचे से बाहर निकला। मेरी नज़रें फ़र्श पे जमी हुई थीं। मैं शर्मिंदगी और डर के मारे उनकी तरफ देख भी नहीं पा रहा था। हम्माद भाई बेड पे बैठे हुए थे और मुझे एक ठहरी हुई नज़रों से देख रहे थे। कमरे का माहौल इतना बोझल हो गया कि मुझे यूँ लग रहा था जैसे ऑक्सीजन ख़त्म हो गई है। मैंने आहिस्ता से अपना सर उठाया तो उनकी आंखों में एक ऐसी गहराई थी जिसने मुझे लाजवाब कर दिया। उन्होंने बिना कोई लफ्ज़ कहे अपना हाथ आगे बढ़ाया और मेरा हाथ मज़बूती से पकड़ लिया। उनकी गिरफ्त में एक सख्ती थी, मगर वो मेरी रहनुमाई कर रहे थे। वो मेरी कलाई थामे हुए खामोशी से कमरे से बाहर ले आए। हम हॉल से गुजरते हुए सीधे मेरे कमरे की तरफ चले गए। मेरे कदम लड़खड़ा रहे थे, दिल की धड़कनें जैसे सीने से बाहर निकलने को हों। हम्माद भाई ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि वो मेरे कमरे के दरवाजे तक पहुँच गए। उन्होंने दरवाज़ा खोला और मुझे अंदर धकेला, रोशनी जलाई और मेरे सामने आके खड़े हो गए। उस लम्हे मुझे महसूस हुआ जैसे मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गुनाह कर दिया है। उनके चेहरे पे अब भी कोई शदीद गुस्सा नहीं था, बस एक ऐसी खामोशी थी जो किसी भी चीख से ज़्यादा ख़तरनाक महसूस हो रही थी। मैं जानता था आज मेरी ज़िंदगी का सबसे कठिन मरहला शुरू होने वाला है और वो अब जो भी फ़ैसला करेंगे मुझे कबूल करना होगा। मेरी शर्मिंदगी मेरे आँसुओं की सूरत में बहने लगी और मैं सिर्फ़ अपना सर झुकाए खड़ा रहा। क्योंकि मैंने अपने भाई के उस एतमाद का खून किया था जो उन्होंने मुझ पे माँ-बाप के जाने के बाद किया था। अब कमरे की तन्हाई में वो मुझसे क्या बात करेंगे, इसका तसव्वुर ही मेरे रोंगटे खड़े कर रहा था। कमरे की मद्धम रोशनी में उनका चेहरा कुछ ज़्यादा ही संजीदा और सख्त दिखाई दे रहा था। उन्होंने दरवाज़ा बंद किया और मेरी तरफ मुड़ के एक ऐसी निगाह डाली जिसने मेरे अंदर के सारे खौफ को कुरेद के रख दिया। मैं अपने बेड के कोने पे सिकुड़ के बैठ गया। मेरे हाथ कांप रहे थे और मेरी आंखों से आंसुओं की एक ना थमने वाली लहर जारी थी। हम्माद भाई ने गहरी सांस ली और मेरे बिल्कुल सामने आके खड़े हो गए। उनकी आवाज़ में एक ऐसी गूंज थी जिसने मुझे मज़ीद खौफज़दा कर दिया। उन्होंने पूछा कि आखिर क्या मसला है तुम्हें साथ? क्यों तुम हर वक़्त मेरे और आयज़ा के कमरे के इर्द-गिर्द मंडलाते रहते हो? मैं तुम्हारी हर एक हरकत को मुसलसल नोट कर रहा हूँ।
मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और तुम्हारी फितरत से बखूबी वाकिफ़ हूँ। बताओ आखिर कौन सी चीज़ है जो तुम्हें इस कदर परेशान किए हुए है और तुम दरअसल करना क्या चाह रहे हो? उनके इस बराह रास्त सवाल ने मुझे अंदर से तोड़ के रख दिया। मैंने पहले तो सर झुका लिया और गिड़गिड़ा के कहा कि कुछ भी नहीं, बस वैसे ही मुझे नींद नहीं आ रही थी। लेकिन वो टलने वाले नहीं थे। वो बार बार मुझसे इसरार करते रहे कि मुझे पता है, कोई तो ऐसी बात है जो तुम्हें अंदर से खाए जा रही है। मुझे बताओ क्या हुआ है। मैं तुम्हें बिल्कुल भी कुछ नहीं कहूँगा, बस एक दफ़ा सच सच बता दो। मैं बार बार यही कहता रहा कि नहीं भाई, कुछ भी नहीं है, लेकिन उनका तजस्सुस और उनका इसरार बढ़ता गया। मैं अंदर से बहुत बुरी तरह घबरा गया। मेरे दिल में एक कश्मकश जारी थी कि अगर मैंने सच बता दिया तो क्या होगा? क्या वो मुझे मारेंगे? क्या वो मुझे घर से निकाल देंगे? मैं जितना ज़्यादा डर रहा था, उतना ही ज़्यादा रोता जा रहा था। आँसुओं की करवाहट मेरे गले में अटक रही थी और मेरा साँस लेना दुश्वार होता जा रहा था। हम्माद भाई का हाथ मेरे कंधे पे आया। उनका लम्स प्यार भरा था, लेकिन उस वक़्त मुझे सज़ा की तरह महसूस हो रहा था। उन्होंने दोबारा नरमी से कहा कि साथ तुम्हारी खामोशी तुम्हारे डर की गवाही दे रही है। तुम क्यों मुझसे पर्दा कर रहे हो? क्या तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं? मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, बस ये जानना चाहता हूँ कि तुम किस उलझन में मुब्तला हो। उनकी बात सुन के मेरे ज़ब्त के सारे बंधन टूट गए। मैं फूट फूट के रोने लगा और मेरी हिचकियाँ बन गईं। मैंने हम्माद भाई के दामन को मजबूती से थाम लिया और अपनी सारी कहानी सुनाना शुरू कर दी। मैंने रोते हुए, हकलाते हुए उन्हें फ़िरोज़ का वो वाक़या, उसकी दिखाई हुई वो नामुनासिब वीडियो और फिर मेरा वो तजस्सुस जिसकी वजह से मैं रात को उनके कमरे में छुपने के मंसूबे बनाता रहा, सब कुछ बता दिया। मैंने उन्हें ये भी बता दिया कि मैं आज रात उनके बेड के नीचे भी छुपा हुआ था, इस डर के साथ कि कहीं वो मुझे देख ना लें। लेकिन जब उन्होंने मुझे देख के भी नज़रअंदाज किया तो मेरा खौफ और बढ़ गया। मैं जब ये सारी बातें बता रहा था तो हम्माद भाई के चेहरे के तासुरात बदलते जा रहे थे। कभी वो हैरत से मेरी तरफ देखते, कभी गुस्से से उनकी पेशानी पे बल पड़ जाते और कभी उनकी आंखों में मेरे लिए दुख का साया लहराने लगता। मैंने जब उनके सामने वो वीडियो वाली बात रखी तो वो कुछ देर के लिए बिल्कुल खामोश हो गए। कमरे में इतना सन्नाटा छा गया कि मुझे अपनी धड़कनें सुनाई देने लगी। मुझे लगा अब वो मुझ पे चीखेंगे, मुझे मारेंगे या मुझे धत्कार देंगे, क्योंकि मैंने उनकी और भाभी की निजी ज़िंदगी के तकद्दुस को पामाल करने की कोशिश की थी। मैं सहम के उनके जवाब का इंतज़ार करने लगा। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थीं और अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढाँप लिया था। मगर जब काफ़ी देर तक खामोशी रही तो मैंने डरते-डरते अपनी उँगलियाँ हटा के ऊपर देखा। हम्माद भाई की आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि गहरा अफ़सोस और फ़िक्र थी। उन्होंने एक लंबी आह भरी और मेरे सर पे हाथ फेरते हुए बोले कि साथ, तुमने ये सब क्यों सोचा? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है? तुम जिस तजस्सुस की ज़द में आए हो, ये इस उम्र के तकाज़े तो हो सकते हैं, मगर ये तुम्हारी अपनी अखलाकी इक़दार को तबाह कर रहे हैं। फ़िरोज़ जैसे दोस्तों की बातों में आके तुमने अपनी सोच को कितना गंदा कर लिया। मैंने तुम्हें कभी किसी काम से नहीं रोका, तुम्हें हर खुशी दी, लेकिन तुमने आज मेरे एतमाद को ठेस पहुँचाई। हम्माद भाई की आवाज़ में अब एक अजीब-सी नरमी आ गई थी, जैसे वो एक बाप की तरह मुझे समझा रहे हों। उन्होंने कहा कि आइज़ा तुम्हारे लिए माँ के बराबर है और तुमने उनके बारे में ऐसे ख़यालात ज़हन में लाए, ये तुम्हारे लिए कितना शर्मनाक है। क्या तुमने सोचा? मैं मज़ीद कुछ ना बोल सका, बस मेरी हिचकियाँ जारी थीं। उन्होंने मुझे अपने सीने से लगा लिया और कहा, अब आइंदा तुम ऐसी हरकत कभी नहीं करोगे। मैंने इस बात में सर हिला दिया, मेरा पूरा जिस्म उस वक़्त काँप रहा था। हम्माद भाई के साथ होने वाली उस तवील गुफ्तगू और एतराफ़ के बाद मेरी ज़िंदगी का मंज़रनामा मुकम्मल तौर पे बदल चुका था। मुझे तवक्को थी कि शायद हालात दोबारा मामूल पे आ जाएँगे, लेकिन घर की फ़िज़ा में एक अजीब-सी तब्दीली आ चुकी थी। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ तब्दीली मेरी आयज़ा भाभी के रवैये में थी। वो पहले की तरह अब मुझसे खुल के बात नहीं करती थी। उनकी मुस्कुराहटों में वो अपनायत और वो बेतकल्लुफ़ी ख़त्म हो गई थी, जो कभी मेरी ज़िंदगी का हिस्सा हुआ करती थी। मुझे शिद्दत से महसूस हो रहा था कि हम्माद भाई ने उन्हें सब कुछ बता दिया है और ये ख़्याल मुझे अंदर से जला के राख कर रहा था। मेरी शर्मिंदगी का आलम ये था कि मैं उनके सामने आने से कतराने लगा। पहले मैं आयज़ा भाभी के साथ जो बदतमीज़ी किया करता था, वो दरअसल मेरा उनके साथ एक आज़ादाना ताल्लुक़ था, मगर अब वो आज़ादी किसी क़ैद ख़ाने में बदल चुकी थी। अब जब भी वो मुझे किसी काम के लिए कहतीं या कमरे से गुज़रते हुए मुझसे कोई बात करती तो मैं फ़ौरन अपनी नज़रें चुरा लेता। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उनकी पुरवकार और पुरसकून आँखों में देख सकूं। मुझे ऐसा लगता था कि उनकी नज़रें मेरे गुनाहों और मेरी नीच हरकतों को पहचान रही हैं। मैं अब उनके हर काम को खामोशी से और बिना किसी सवाल के फ़ौरन कर दिया करता था, मगर इस अतात में कोई खुशी नहीं थी, सिर्फ़ एक बोझ था, एक पछतावा था। पहले आयज़ा भाभी मुझे प्यार से एक बच्चे की तरह समझाती थीं, मेरी गलतियों पे मुझे डाँटती थीं और मुझे सही राह दिखाने की कोशिश करती थीं, लेकिन अब उन्होंने मुझे समझाना छोड़ दिया था। वो मुझसे एक
अजनबी जैसा सलूक कर रही थीं। एक ऐसा फासला जो मेरी तन्हाई को मज़ीद गहरा कर रहा था। मुझे याद है एक शाम मैं बैठक में अकेला बैठा था कि भाभी चाय का कप लेके आईं और मेज़ पर रख के खामोशी से वापस मुड़ गईं। मैंने सर उठा के देखा, वो कुछ कहना चाहती थी मगर उनके होंठ बंद रहे। उनकी ये खामोशी मेरे लिए किसी सज़ा से कम ना थी। मुझे वो दिन याद आ रहे थे जब मैं उनसे फ्री होके बातें करता था, उनका मजाक उड़ाता था और वो मुझे प्यार से टोकती थी। अब इन तमाम बातों का तसव्वुर भी मुझे लर्जा देता था। मैं अब उनसे फ्री होके बात करने का सोच भी नहीं सकता था। मेरी ज़ुबान पे ताले पड़ गए थे। मुझे महसूस हो रहा था कि मैंने अपने हाथों से अपने घर के इस प्यार भरे माहौल को बर्बाद कर दिया है। मैं अब अपनी भाभी से नज़रें मिलाने से डरता था, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं उनकी आँखों में मेरे लिए हकारत ना देख लूँ। घर का वो माहौल जो कभी मेरे लिए एक जन्नत था, अब एक ऐसा कमरा बन चुका था जहाँ हर तरफ सिर्फ़ खामोशी और दूरी का पहरा था। मैं अपने कमरे में बैठ के घंटों ये सोचता रहता कि आखिर मैंने ऐसा क्यों किया। फिरोज़ के कहे हुए अल्फाज और उसकी दिखाई हुई उस वीडियो ने मेरी सोच को किस गहराई में उतार दिया था। मैं अपना क्रिकेट खेलता, न दोस्तों से मिलता, बस सारा दिन खुद को अपने कमरे में कैद रखता। भाभी की वो बेरुखी, उनका वो कटा कटा सा रवैया मेरे लिए किसी ताज़ियाने से कम नहीं था। जब वो कमरे में आती तो मैं फ़ौरन अपनी नज़रें किताबों या मोबाइल की स्क्रीन पे जमा लेता, हालांकि मेरा ध्यान सिर्फ उनकी मौजूदगी पे होता था। मैं अब वो साध नहीं रहा था जो अपनी मर्ज़ी का मालिक था, जो अपनी भाभी की बात को एक कान से सुन के दूसरे से निकाल देता था। अब मैं हर लम्हा उस एहसास-ए-जुर्म के साथ जी रहा था कि मैंने अपनी भाभी के तकद्दुस को अपनी नज़रों में गिराया है। मैंने हम्माद भाई को भी नोट किया, वो पहले की तरह मुझसे खुल के मज़ाक नहीं करते थे। उनका रवैया अब बहुत संजीदा और मोहतात हो गया था। ऐसा लगता था जैसे उन्होंने मुझे माफ़ तो कर दिया है, लेकिन वो मुझे अब कभी वो पुराना मकाम नहीं देंगे। ये सब कुछ मेरी अपनी गलतियों का नतीजा था और अब मैं इसका ख़मियाज़ा भुगत रहा था। कभी-कभी मेरा दिल चाहता कि मैं भाभी के पैरों में गिर के माफ़ी माँग लूँ, लेकिन मेरी शर्मिंदगी मुझे आगे बढ़ने से रोक देती थी। मैंने जो कुछ किया वो मेरी उम्र के तजस्सुस से कहीं बढ़कर एक इख़्लाक़ी गिरावट थी, जिसका एहसास मुझे आज पल-पल हो रहा था। कई दिन गुज़र गए मगर ये दूरी कम होने के बजाय मज़ीद बढ़ती गई। एक दिन मैंने हिम्मत करके भाभी को पुकारा तो वो रुकी तो सही, मगर उनके चेहरे पे वो पुरानी गर्मजोशी नहीं थी। उन्होंने बहुत सर्द लहजे में पूछा, क्या काम है साथ? मैं कुछ बोल न सका और बस इतना कह पाया कि कुछ नहीं, बस वैसे ही। उन्होंने एक हल्की सी नज़र मुझ पे डाली और वहाँ से चली गईं। उनकी उस सर्द मोहरी ने मेरे दिल को छलनी कर दिया। मैंने महसूस किया कि एतमाद को बहाल करना एतमाद को तोड़ने से कहीं ज़्यादा मुश्किल काम है। मैं अब भी इसी कश्मकश में मुब्तला था कि क्या कभी वो दिन वापस आएगा जब मैं दोबारा उनसे हंस के बात कर सकूँगा? क्या वो कभी मुझे इस गलती के लिए दिल से माफ़ कर सकेंगी? ये सवालात मेरे जहन में एक तूफ़ान की तरह चलते रहते थे। उस सारी सूरत हाल में मुझे ये समझ आ गया कि वक्त का हर लम्हा कितना कीमती होता है और हम कितनी आसानी से अपनी छोटी-सी हरकतों से अपने प्यारों के दिलों में अपने लिए एक दीवार खड़ी कर लेते हैं। मैं अब हर रात अकेला जागता और सोचता कि मैं कैसे इस दूरी को ख़त्म करूँ। मुझे मालूम था कि इसका हल सिर्फ़ मेरी मुसलसल माज़रत और बदलता हुआ रवैया है, मगर ये सब कितना वक़्त लेगा ये कोई नहीं जानता था। मैंने उसी वीरानी में जीना सीख लिया, एक ऐसी खामोशी जो मेरे अपने ही किरदार का अक्स थी। कई हफ़्ते गुज़र चुके थे और घर की खामोशी मेरी रूह को खुरच रही थी। आयज़ा भाभी की सर्द मोहरी और मेरी अपनी शर्मिंदगी ने हमारे दरमियान एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी थी जिसे मैं अबूर करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। इसी दौरान अचानक मौसम की तब्दीली और मेरी अपनी लापरवाही की वजह से मेरी तबीयत शदीद ख़राब हो गई। मुझे तेज़ बुखार ने अपनी गिरफ्त में ले लिया और मैं अपने कमरे में बिस्तर पर पड़ा रह गया। बुखार की शिद्दत से मेरा बदन टूट रहा था और सर में जैसे हथौड़े चल रहे थे। इस हालत में मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि भाभी मेरी देखभाल करने आएंगी, क्योंकि मेरे दिल में ये डर बैठा हुआ था कि मैंने उनकी नज़रों में अपना मकाम खो दिया है। मगर एक दिन जब बुखार अपनी इंतहा पे था और मैं करा रहा था तो कमरे का दरवाज़ा आहिस्ता से खुला। मैंने नीम आँखों से देखा तो आयज़ा भाभी हाथ में पानी का ग्लास और दवाई लिए खड़ी थीं। उनके चेहरे पे वही पुरानी शफ़क़त, वही फ़िक्र जो मुझे बीमारी में माँ की याद दिलाती थी। उन्होंने खामोशी से मेरे पास बैठ के मेरा सर अपनी गोद में रखा और ठंडे पानी की पट्टियाँ मेरे माथे पे रखने लगीं। उनका लम्स इतना पुरसकून था कि बुखार की जलन कम होने लगी। मैंने उनकी तरफ देखा तो उनकी आँखों में मुझे वही प्यार नज़र आया जो उस वाक़ये से पहले हुआ करता था। मैं जज़्बात पे काबू न रख सका तो मेरी आँखों से आँसू जारी हो गए। मैंने हिचकियाँ लेते हुए उनका हाथ थाम लिया और कमज़ोर आवाज़ में कहा, भाभी मुझे माफ़ कर दें। मैंने आपके बारे में जो कुछ सोचा और जिस तरह आपके निजी मामलात में मुदाखलत की, वो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हमाकत थी। मुझे खुद पे बहुत शर्मिंदगी है कि मैंने आप जैसी हस्ती के तकद्दुस को अपनी नापाक सोच से दागदार करने की कोशिश की।
भाभी की आंखों में भी आंसू आ गए, मगर वो मुस्कुराईं। उन्होंने मेरे सर पे हाथ फेरा और बहुत नरमी से बोली कि देखो साथ जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। तुम इस वक्त बहुत छोटे थे, नादान थे और तजस्सुस की उम्र में थे। अब तुम बड़े हो रहे हो, तुम्हें अपनी सोच और अपने आमाल का ख्याल रखना चाहिए। इंसान गलती का पुतला है, लेकिन वही इंसान बेहतरीन है जो अपनी गलती का एहसास करके उसे सुधार ले। उन्होंने मुझे एक बड़े भाई की तरह समझाते हुए कहा कि तुम कभी भी गलत रास्ते पर मत चलना। कोई भी कदम उठाने से पहले या किसी भी उलझन में पड़ने से पहले अपने भाई से बात किया करो। वो तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं और तुम्हारी बेहतरी चाहते हैं। जो भी बात तुम्हारे दिल में हो वो अपने भाई के सामने खुल के रख दिया करो। इसके बाद तुम जो भी कदम उठाओगे वो हमेशा दुरुस्त होगा। उनकी बातों ने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। ऐसा लगा जैसे सालों का गुबार एक ही लम्हे में धुल गया हो। मैंने सच्चे दिल से उनसे माफ़ी मांग ली और उन्होंने मुझे गले लगा के इस वाक़े को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। उस दिन के बाद से मैं मुकम्मल तौर पे बदल गया। मेरे अंदर का वो भटका हुआ तजस्सुस में मारा-मारा फिरने वाला लड़का अब कहीं गुम हो गया। मैंने फ़िरोज़ से हर तरह का राब्ता तोड़ दिया और अपनी पढ़ाई और अपने मुस्तक़बिल पे तवज्जो देने लगा। भाभी का रवैया पहले से भी ज़्यादा मोहब्बत भरा हो चुका था। उन्होंने मुझ पे पहले की तरह भरोसा करना शुरू कर दिया था और मैं भी अब उनके सामने सर झुका के बैठता और उनकी हर बात को गौर से सुनता। मुझे पहले समझाना छोड़ चुकी थीं, अब दोबारा मुझे ज़िंदगी के अहम सबक सिखाने लगीं। अम्माद भाई भी अब मुझसे खुल के बात करते और घर में दोबारा वही खुशगवार माहौल लौट आया। मैंने इस वाक़ये से ये सीखा कि रिश्ते कितने नाज़ुक होते हैं और उन्हें सँभालने के लिए सच्चाई और एतमाद कितना ज़रूरी है। मैं अब इस अपनी ज़िंदगी के इस मोड़ पे खड़ा था जहाँ मुझे अपना मकसद वाज़ेह नज़र आ रहा था। मेरी शर्मिंदगी एक सबक बन के मेरे साथ हमेशा रहेगी ताकि मैं कभी दोबारा उस तारीक रास्ते की तरफ ना देख सकूँ। आयज़ा भाभी की वो माफ़ी और उनका प्यार मेरे लिए एक नई ज़िंदगी का पैगाम था। अब मैं हर वक़्त अपने घरवालों के साथ खुश रहता था। मेरा दिल इस बात पे मुतमईन था कि मैंने अपनी गलती को सुधार कर एक नेक और बेहतर इंसान बनने की राह चुन ली है। ये कहानी अब यहाँ ख़त्म होती है एक ऐसे मोड़ पे जहाँ से मेरी नई और बेहतर ज़िंदगी का आगाज़ हुआ। अब घर में फिर से हँसी और खुशी का समा था और मैं इसी सुकून की कदर करना सीख गया था, क्योंकि मैं जान चुका था कि अपनों की मोहब्बत से बढ़ के इस दुनिया में और कोई दौलत नहीं है।